Okay, students, today I am going to talk about performance of medium transmission line. Okay, in last class, what we have studied? We have studied about the performance of transmission line, types of transmission line, what were the criteria? Criteria were the length. If the length is up to 50 kilometer, less than 50 kilometer, and operating voltage is approximately 20 kV, then the wire was transmission line was considered as short transmission line. Similarly, if the length is 150 to 150 kilometer, operating voltage is more than 20 to 110 kilovolt. Okay, that was medium transmission line. And then long transmission line, lengthy wires are other than medium transmission line, that will be considered to be long transmission. Okay, in previous class I have also told you about the performance of short transmission line, what will be its sending and voltage, receiving and voltage regulation, transmission efficiency, sending and power factor, and obviously I have already calculated these values. Okay, then after I solved a numerical related with short transmission line. Now I am going to talk about the performance of medium transmission line. Here again, with the help of numerical problem, I will try to clarify all the three about all the things about medium transmission. तो क्या है कि what we have studied, what were the main things related with medium transmission. क्या हम लोग पढ़े शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग पढ़े कि दो लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी लो and operating voltage is low, therefore capacitive value will be smaller. Okay, therefore we had not considered the capacitive effect. Okay, now the length has been increased in medium transmission line, that is up to 150 kilometer, and operating voltage is again high. Therefore here we have to consider the effect of capacitive value of the conductors, capacitance between two conductors, and we are using three-phase conducting lines, overhead line system. Therefore everywhere it means capacitance between each conductor will have a considerable meaning. Therefore we are not going to neglect the value of capacitance. समझ के कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग क्यों नहीं नेग्लेक्ट करते हैं. Then as similar as short transmission line, here we adopt actually three methods. Those are known as localized capacitance method to calculate these things. What these things? Sending and voltage, sending and current, sending and power factor, voltage regulation, efficiency. Okay, कि हमको ये सब जो कैलकुलेट करना है कि क्या वोल्टेज रेगुलेशन, इफिशियंसी, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये सब जो कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए और क्या हमारा यहाँ मेजर फैक्टर है कैपेसिटेंस कंसीडर करना है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, here we are going to use three methods. There are three methods to determine these values. Okay, and these are known as
what these are what localized capacitor okay, and these are what, how much, 3 to calculate the different parameters, voltage regulation, transmission efficiency, etc. of medium transmission line, we adopt the method that is known as localized capacitance method. क्या करते हैं, ये सब पैरामीटर मीडियम ट्रांसमिशन का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको लोकलाइज्ड कैपेसिटेंस मेथड कह रहे हैं। और ये आपका कितना होता है, 3 का। 3 कौन कौन है? फर्स्ट इज नोन एज एंड कंडेंसर मेथड, एंड कंडेंसर मेथड, ओके। सेकंड वन इज you can say nominal T method and nominal pi method. Then what are the assumptions here? क्या क्या हम एज्यूम करते हैं इसमें वो देखें, और क्या किसको कहते हैं, है ना। तो एंड कंडेंसर मेथड में जो है, लेट अस टॉक अबाउट एंड कंडेंसर मेथड। सिंपली समझिए इसमें करते क्या है, हम लोग जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ले रहे थे उसी के जैसा यहाँ पर ले लेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे ले लिए रेजिस्टेंस और इंडक्टिव वैल्यू ऐसे ले लिए, जैसे उसमें लिए थे R X, यहाँ आपका हो गया, यहाँ ले लीजिए आप VS, that is what, sending and voltage pair applied between these two terminals. This is your live conductor, this is your neutral conductor of the transmission line. Then in between two terminals we are using sending and voltage VS. Here this the resistive value, the inductive value. Now what we have to take here new thing, that is capacitor. तो यहाँ क्या करते हैं कि इस मेथड में, सब मेथड अलग अलग, इस मेथड में मानते हैं ना, नेम इज व्हाट, एंड। तो कंडेंसर को, कैपेसिटर को, कैपेसिटर इज द नेम, अदर नेम ऑफ कंडेंसर। तो यहाँ हम लोग क्या मानते हैं कि कंडेंसर जो है, व्हाट आई हैव टोल्ड टू यू, इन बिटवीन टू लाइव वायर्स एंड न्यूट्रल, हम लोग 2 वायर यूज करते हैं ना, एक लाइव एक न्यूट्रल, तो उनके बीच में कैपेसिटेंस इज एवरीवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बताए थे, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है कैपेसिटेंस, है ना, लेकिन शॉर्ट ट्रांसमिशन में लाइन में निगलेक्ट कर दिए, इग्नोर कर दिए। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट मानते हैं, लम्प्ड, दिस इज कॉल्ड लम्प्ड, और कंसंट्रेटेड एट 1 और 2 पॉइंट्स। होना क्या चाहिए, सब जगह होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें मानते हैं कि कैपेसिटिव वैल्यू एक जगह लम्प्ड है या 2 जगह लम्प्ड है। कैसे कैसे मेथड में लेते हैं वो बताते हैं ना। यहाँ हम कैपेसिटर को, 2 कैपेसिटर्स आर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, क्या होता है, सब जगह बटा होता है, लेकिन हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या ले रहे हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में केवल मानते हैं कि एक जगह लम्प्ड है, कंसंट्रेटेड है, या 2 जगह कंसंट्रेटेड है, ओके। फॉर द कंफर्टेबिलिटी इन कैलकुलेशन, हम लोग क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा आराम हो जाए, शॉर्टकट मेथड हो जाए, उसके लिए, ठीक है। एंड टोटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटर्स इज टेकन इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। वहाँ हम आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को जहाँ लैम्प्ड लेंगे या इग्नोर करेंगे, वैल्यू सारा एब्सर्ड बताएगा। तो नाउ वी आर एट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड वी आर गोइंग टू टॉक एंड कंडेंसर मेथड। तो एंड कंडेंसर मेथड में क्या करते हैं कि कैपेसिटिव वैल्यू को हम मान लेते हैं कि लम्प्ड कहाँ पर है, एंड पर है। एंड मीन्स रिसीविंग एंड पर,
तो यहाँ पर हम मान लिए कि यहाँ पर हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। कैसे? लम्प्ड है, एक जगह कंसंट्रेटेड है। और हेयर देयर इज लोड, दिस इज योर रिसीविंग एंड, दिस इज योर लोड एंड वैल्यू हेयर of what? Voltage here, receiving end voltage is VR. Okay, then let us say this current to be IS, sending end current. Here this current is being divided in two parts, that is this one is what? IR and this is your IC. This is the case. ठीक है, समझ गए? एंड कंडेंसर मेथड में क्या मान लिए कि हमारा कैपेसिटर कहाँ है, रिसीविंग एंड पर एक जगह लम्प है, कंसंट्रेटेड है ना। और ये तो लेंगे ही लेंगे, रेजिस्टिव और इंडक्टिव वैल्यू होगा। तो जस्ट सिमिलराइज दिस शॉर्ट मीडियम, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, आर इज हेयर, एक्स इज हेयर, बी एस इज हेयर। हेयर वी हैव इंट्रोड्यूस द न्यू थिंग, दैट इज कैपेसिटर, दैट इज आईसी। तो आपका यहाँ पर हम सेंडिंग एंड वोल्टेज VS ले लिए, यहाँ IS ले लिए। करंट, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको हम लोग कह दिए IC, इसको कह दिया IR, ये जगह आपका वोल्टेज है VR। समझ गए, है ना। देन फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड कंडेंसर मेथड। तो अब हम इसका ये बताएंगे, क्या इसका फेजर डायग्राम भी बताएंगे, वैल्यू भी। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ हम इसको जरा सा आपको गाइडलाइन से दे दें, जरा सा, और उसके बाद फिर अलग अलग बताएंगे तो डिटेल में बताएंगे, है ना। यहाँ आपको लग रहा होगा ये है क्या भाई, तो ये दोनों का जस्ट गाइड ये दे देते हैं, आइडिया दे देते हैं। एंड वी विल स्पेशली टॉक अबाउट एंड कंडेंसर मेथड। ओके, नाउ कम एट नॉमिनल टी मेथड। दिस इज व्हाट टी मेथड। तो यहाँ हम एक क्यों नाम है ऐसा कि स्ट्रक्चर हमारा टी जैसा हो जाए। तो क्या लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं कि आपका एक कैपेसिटर जो है, यहाँ ये रेजिस्टेंस वैल्यू देता है इसके, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड मान लेते हैं ऐसे। ऐसे, और इसके बीच में एक कैपेसिटर। कैपेसिटर कहाँ ले रहे हैं, बीच में, किसके, इसको हाफ हाफ मान लेते हैं। यहाँ जो लिए थे RX, तो ये ले लेंगे R/2 हाफ वैल्यू, इसका हाफ वैल्यू, यहाँ हाफ वैल्यू, यहाँ वैल्यू। इसको क्या है, RX को हम दो पार्ट में बांट दिए, इक्वल इक्वल, R/2 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 X/2 R/2 X/2। और इसके सेंटर में क्या, ट्रांसमिशन वायर जो है उसके बीच में हम क्या मान लिए कि एक हमारा कैपेसिटर है ना, एक ऐसे। हेयर इज योर VR, this one is your VR, here this one is your VS, okay, and current is divided here, this is your IS, this is your IR and this one is IC। कैसे लिए हैं, इसमें क्या किए, नॉमिनल टी मेथड में सबसे पहले समझने के लिए आसान समझ लीजिए, ये टी जैसा बन गया, इधर इधर टी जैसा बन गया, इसलिए इसको नाम देते हैं नॉमिनल टी मेथड। इसमें क्या किए, ये जो पूरा वायर है हमारा ट्रांसमिशन वायर, लाइव वायर, उसको क्या कर लिए, इसका सेंटर ले लिए, और सेंटर के बीच में हम एक एज्यूम कर लिए कि क्या है, कैपेसिटर लम्प्ड है, इसके बीच में एक कैपेसिटर है, वैल्यू किसका है, इसका C है ना। कैपेसिटर को कहाँ ले रहे हैं, पूरे वायर के मिडिल में, सेंटर में, उस जगह कंसीडर कर लिए कैपेसिटर है। और जो RX का वैल्यू था उसको हाफ इधर हाफ इधर, है ना। वायर आधा हो गया तो इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा ना, इधर हाफ इधर हाफ इधर, दोनों के बीच में कैपेसिटर। दिस इज नोन एज नॉमिनल टी मेथड। ओके, अब आ जाइए, यही चीज को अगर कर दीजिए ऐसे, एक ऐसे आप कर दीजिए, here there is R, there is X,
ऐसे, और यहाँ पर कैपेसिटेंस ले लीजिए, कैपेसिटेंस को 2 पार्ट में ले लीजिए ऐसे, है ना। और ये आपका हो गया VS, ऐसे ले लें, ये आपका हो गया VS, ये हो गया, है ना। इधर से हो गया ये IS, और यहाँ हम एक कैपेसिटर यहाँ दिखा दिए, कैपेसिटर यहाँ दिखा दिए, और इस जगह हम कर दिए ये हमारा क्या है ना। ये वैल्यू कैपेसिटर को 2 जगह ले लिए, हाफ C/2 C1, है ना। और ये R और ये X, समझ गए क्या ले रहे हैं कि इसमें हम RX ले लिए, इसमें RX लिए थे, आपकी किनारे में कैपेसिटर जोड़ दिए थे, एंड कंडीशन मेथड। T मेथड में क्या कर दिया, स्ट्रक्चर T जैसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे। इसमें क्या कर दिए, सेंटर में माने कैपेसिटर को सेंटर में माने लोकलाइज, कैसा मान रहा है, लम्प्ड, हाफ इधर है बाय तो R/2 X/2, हाफ इधर बाय है R/2 X/2। इसमें हम क्या मान लिए, हाफ कैपेसिटी वैल्यू कहाँ ले लिए, कहाँ पर ले लिए, सेंडिंग एंड पर, और हाफ कैपेसिटी वैल्यू ले लिए रिसीविंग एंड पर, और उसके बीच में वायर। ओके, दीज आर द, और इसमें हम अपना ये कर सकते हैं, करंट को भी दे दीजिए, ये ले लीजिए I, ये ले लीजिए IR, ये आप इसको कर दीजिए I, ऐसा IC, और S कह दीजिए, S फॉर व्हाट, S फॉर सेंडिंग, इसको कर दीजिए IRS, शंटेड कैपेसिटर, current through shunted capacitor of receiving end, current through shunted capacitor in at receiving। ओके, तो ये हमारा तीनों मेथड हो गया, क्लियर। और इसको फिर हम बाद में ये जब अकेले अकेले डिस्कस करेंगे तो उसको भी बताएंगे। नाउ कम व्हाट इज आवर एम, आवर एम इज टू टॉक अबाउट एंड कंडीशन, तो यह समझ गया, है ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम कैसे बना, आप यहाँ पर हम क्या ले लें, VR को स्टैंडर्ड वोल्टेज मान, VR रिसीविंग एंड वोल्टेज को क्या मान लिए, स्टैंडर्ड वोल्टेज, दिस इज योर VR, ठीक है। ये हम क्या ले रहे हैं, रिसीविंग एंड वोल्टेज को स्टैंडर्ड वोल्टेज, इसको, ठीक है। अब हमारा एक करंट कैसा होगा, है ना। तो एक करंट कैसा है, किस नेचर का है, R और X के कारण है, तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव सर्किट हो गया। R और L, तो R L में क्या होता है आपको हम बता चुके हैं, याद रखिए। सिविल जब इस नेचर का हो, इंडक्टिव नेचर का, तो वोल्टेज भी लीड करंट, करंट इज लैगिंग, तो हमारा करंट कैसे होगा, ये हमारा FIR ऐसे होगा, कैसे होगा, VIL, L फॉर इंडक्टिव सर्किट, और V इज लीडिंग विथ I, वोल्टेज लीड्स करंट इन इंडक्टिव सर्किट। कैसे इसको पढ़ेंगे, वोल्टेज लीड्स इन इंडक्टिव सर्किट, है ना। तो वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, एंगल इसके बीच में कितना है, IR है। ओके, फिर क्या जानते हैं, जब हमारा कैपेसिटिव सर्किट है CIV, तो कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड करेगा वोल्टेज को, और यहाँ पर ये प्योर कैपेसिटर है, तो कैपेसिटिव करंट कैसा लीड करेगा, एकदम प्योर 90 डिग्री पर। तो हेयर वी विल शो IC एज दिस, यहाँ पर हमारा IC कैसे हो गया, ऐसे, कैसे, प्योर ऐसे परपेंडिकुलर, है ना, लीडिंग दिस थिंग, दिस वन हियर, ये हो गया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर गौर करिए सर्किट में, हेयर IS
करंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू आई आर प्लस आई सी, तो हम क्या लिखेंगे, आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी। व्हाट डज इट मीन, जो सेंडिंग एंड करंट है वो रिसीविंग एंड और कैपेसिटिव करंट का सम है। तो एक वेक्टर ये हो गया, एक फेजर ये हो गया, दूसरा फेजर ये होगा, तो तीसरा इसका सम कैसे होगा, ऐसे। ये आपका हो गया आई एस। क्लियर, आई आर और आई सी का सम क्या हो गया, आई एस। क्लियर, तो हम करंट समझ गए। अब यहाँ देखिए, इसमें हम केवीएल ले, तो हम क्या देख रहे हैं, वी एस इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स, और ऐसे लिखिए, अलग अलग लिखिए, आर आई एस प्लस जे एक्स आई एस। यहाँ पर ड्रॉप, इसके थ्रू ड्रॉप क्या हो गया, आर आई, इसके क्रॉस ड्रॉप क्या गया, आर इंटू आई एस। इसके क्रॉस कितना हो गया, एक क्वाड्रेचर में है तो जे एस आई एस यहाँ तक पहुँच गया, और प्लस, तो ये हमारा सम क्या है, इसको हम ऐसे लिखें, आर प्लस जे एक्स आई एस प्लस वी आर, एंड वी से दिस टू बी जेड, दिस वन ऑल ऑफ यू नो, आई एस प्लस वी आर। ये हमारा कितना है, तो हम क्या क्या देखेंगे, इसको हम ऐसे दिखा दें। तो हमको क्या चाहिए, ये दोनों का सम चाहिए और वी आर। तो ये आपका क्या है, आर इंटू आई एस, ठीक है। तो आपका एक किसके सेंस में होगा, क्या जानते हैं, रेजिस्टिव पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो करंट का फेज में होता है। तो आपका आई एस ऐसे है, तो ये भी इसी के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल, ये कितना होगा, ये वैल्यू हो गया आर इंटू आई एस, ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब ए वाला ड्रॉप देखें, ये ड्रॉप हो गया। अब ए ड्रॉप देखें कैसा है, जे है, मतलब 90 डिग्री पर है, तो इस पर ठीक 90 पर ऐसे एक्स आई एस ए हो गया, आर आई एस ए हो गया, और ये एक्स आई एस, ये दोनों का सम कितना हो गया, ये हो गया, है ना। ये आपका हो गया क्या, जेड आई एस, है ना, ये जेड आई एस हो गया। देखिए इतना का सम आपका दिस प्लस दिस मीन दिस, ये हो गया आपका इतना। और ये आपका क्या है, वी एस जो है, वी एस किसका सम है, वी एस इज द सम ऑफ जेड आई एस और वी आर ऐसे, और ए वी एस ए जेड इंटू आई एस है। तो इन दोनों का सम कैसे होगा, ऐसे होगा, हाँ ये आपका ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वी एस, ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, है ना। सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू आई एस इंटू इम्पीडेंस प्लस वी हो गया। फेजर डायग्राम क्लियर हो गया। अब आइए, ये हो गया वी एस और ये हो गया आई एस, ए है ए सेंडिंग एंड करंट, ए सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इस जगह पर ये एंगल कितना हो गया, फाई एस। फाई एस व्हाट इज द व्हाट, एंगल बिटवीन सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट। सेंडिंग एंड करंट हमको यहाँ मिला, सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ मिला। ओके, अब आ जाए हम लोग कि ये क्या करेंगे इसमें। तो सेंडिंग एंड करंट कैसे निकलेगा, सेंडिंग एंड करंट देख लिए। अब कैसे लेंगे, आई आर कैसे लेंगे, आई आर प्लस आई सी होना चाहिए। तो आई आर कैसे लेंगे, आई आर मेरा क्या है, ए वाला वैल्यू है। तो ए क्या है, लैग कर रहा है इससे, वी आर को रेफरेंस माने हैं, वी आर को रेफरेंस मान रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है। तो कैसे लैग का क्या दिखाते हैं, आई आर इंटू कैसे लिखते हैं, कॉस फाई प्लस जे। तो यहाँ पर ये क्या है, लैग है, इसलिए माइनस जे साइन फाई आर।
तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, कॉस फाई आर का वैल्यू दे देंगे, साइन फाई आर का वैल्यू दे देंगे, माइनस जे साई फाइन अब फाई आर, और इसको आई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टोरियल वैल्यू निकल जाएगा, फेजर वैल्यू रिसीविंग एंड का, है ना। तो रिसीविंग एंड करंट निकल गया। अब हमारा आईसी क्या होगा, आईसी क्या है, आईसी इज व्हाट, दैट इज जे ओमेगा सी इंटू किसके अक्रॉस है, कौन वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ए है, वी है ना। ए पॉइंट और ए पॉइंट सेम है, ए पॉइंट और ए पॉइंट सेम है, इसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप वी आर, इस जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी आर, रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो इस जगह वी आर, ये हो गया जे ओमेगा सी आर सी इंटू वी। तो आपका इसका फेजर वैल्यू निकल गया रिसीविंग एंड का, और ये आपका क्या निकल गया, कैपेसिटिव करंट भी निकल गया, चार्जिंग करंट और लीकेज करंट। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन फर्स्ट क्लास। देन यू कैन गेट आई एस इक्वल टू व्हाट, आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई सी, देन दिस इज योर आई आर कॉस फाई आर माइनस जे साइन फाई आर। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया मैग्नीट्यूड, आइए इसका, ये जे आई सी है ना, आई सी आई एस इक्वल टू क्या है, आई आर, ये आई आर हो गया, और आई सी आपका क्या हो गया, जे ओमेगा सी, है ना। इसको कर दिया आई आर कॉस फाई आर, एक जगह हो गया प्योर वैल्यू, और ये क्वाड्रेचर में हो गया, तो प्लस क्या हो गया, जे ओमेगा सी भी, ए वाला हो गया, माइनस ए वाला कितना हो गया, आई आर साइन फाई, है ना। मतलब जे हम अलग कर दिए, ये इसमें प्योर हो गया, ये प्योर क्वांटिटी हो गया, बाकी ये दोनों हो गए, तो ये आपका जे ओमेगा सी भी, इसी प्योरिटी, ठीक है। तो हमारा आई एस जो वैल्यू रहेगा, रिसीविंग एंड करंट का वैल्यू, पावर फैक्टर का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू, करंट का वैल्यू, फाई साइन फाई आर का वैल्यू दे देंगे, तो हमको आई एस निकल जाएगा। एवरीथिंग आई विल क्लेरिफाई यू विद एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ये आप समझ लीजिए, थ्योरी केवल बता रहे हैं, घबराइए मत, इसका हम न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, और एक एक चीज फिर से क्लियर करेंगे विथ वैल्यू। हो गया यहाँ, तो आई एस निकल गया हमारा। अब आपका आई एस निकल गया, अब आइए इस पर, तो यहाँ ये कर दें, इरेज कर दें, तो आप आ जाइए वी एस। तो हमारा जेड का वैल्यू पता है ही, है ना, जेड क्या है, आर प्लस जे एक्स, ये वैल्यू गिवन रहेगा, है ना। और आई एस वी हैव जस्ट ऑब्टेन्ड दिस वैल्यू, है ना, ये अभी निकला है ना आई एस, तो हम जेड इंटू आई एस निकाल लेंगे, यहाँ पर अभी हम निकाले हैं आई आर कॉस फाई आर प्लस जे ओमेगा सी वी आर माइनस आई आर साइन फाई आर, ये हो गया। और यहाँ पर जेड आर प्लस जे एक्स रख दिए, और ये फिर आई एस का वैल्यू दे दिए, ये हो गया, क्या हो गया इतना, आई आर कॉस फाई आर प्लस जे ओमेगा सी वी आर माइनस आई आर साइन फाई, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। अब हमारा वी एस इक्वल टू क्या है, जेड आई एस प्लस वी आर, तो ये जेड आई एस का वैल्यू है, अब वी आर में ऐड कर देंगे, ये निकल जाएगा आपका, है ना, क्लियर है। अब यहाँ आ जाइए, ये आपका स्टैंडिंग एंड वोल्टेज निकल गया। अब यहाँ आइए, इसको करिए, वी एस माइनस वी आर इक्वल टू कितना हो गया, जेड आई एस, और वोल्टेज रेगुलेशन, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू
VS minus VR divided by VR into how much 100, ये आपका हो गया। तो आपको VS माइनस VR का वैल्यू है Z, यहाँ लिखिए Z इंटू IS डिवाइडेड बाई VR का वैल्यू ये हो गया बाई VR इंटू 100। ये आपका निकल गया क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। इफिशियंसी हम लोग क्या जानते हैं, इफिशियंसी इक्वल टू परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट दैट इज VI cos phi। किसका, आउटपुट का, रिसीविंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड करंट cos phi है। और क्या जानते हैं, इनपुट पावर आउटपुट प्लस लॉस। तो पावर आउटपुट कितना है, VR IR cos phi R, और ये लॉस कितना है, मेन करंट ये है IS। देन दिस इज क्या जानते हैं, I स्क्वायर एस, तो IS स्क्वायर इंटू R। जो होता है लॉसेस रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, करंट इसके थ्रू क्या पास कर रहा, IS, दिस करंट इज IS। देन दिस इज वी नो दैट पावर लॉस इज I स्क्वायर, पावर लॉस इज इक्वल टू I स्क्वायर R। देन हियर current is IS, our resistive value is IR. Then this is the loss, this is output power, and this is output power. So power at receiving and delivered power, right? Power at receiving end plus loss, that is power from sending end. तो ये वाला ले लेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या निकल गया, इफिशियंसी निकल गया। तो यही तो है, आपको क्या क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है, वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज निकाल दिए, करंट निकाल दिए। इट्स ओके। अगले बार मिलते हैं आपसे किस चीज़ में, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा मेथड लेके, पाई और टी मेथड 1 by 1 और विथ न्यूमेरिकल। ओके।